second session on the 9th day. Dear participants, welcome to the second session on the 9th day of this online refresher course in Law and Political Science. It is a huge privilege for me to introduce to you another mammoth personality from political science field. Today, friends, we are having with us Professor Dr. Nirmal Jindal ma'am. First of all, I'd like to give a brief introduction about respected ma'am to all of you. Professor Nirmal Jindal ma'am is an alumnus of Hindu College, University of Delhi, and she is having more than 38 years of teaching experience in Delhi University. At present, she is an officiating principal of Satyavati College, Delhi University. She has been a recipient of a Fulbright postdoc fellowship for research at the Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, US. She was also awarded a diploma in Advanced International Studies from the Department of Peace and Conflict Resolution, Uppsala University, Sweden. In the year 2017, she was awarded the College Lecturer Award, Directorate of Higher Education, Government of and City of Delhi. Apart from teaching in the Department of Political Science, Satyavati College, University of Delhi, she has been a visiting faculty in the Department of Political Science, University of Delhi, Internal Security Academy, Central Reserve Police Force Academy, CRPF, Mount Abu, and the Center for Professional Development and Higher Education, University of Delhi, and Foreign Service Institute, Ministry of External Affairs. Ma'am has published several books such as War as a Political Weapon in the Nuclear Age, the United States Foreign Policy Issues and Perspectives. Ma'am has also edited several books like Global Politics, Issues and Perspectives, and International Relations, Theory and Practice. Ma'am is having more than 26 articles in journals including Kashmir Issue in Nuclearized South Asia, Changing Dimensions of National Security, Good Governance in Indian Democracy in India Quarterly, and Politico respectively. Ma'am has more than 26 articles in journals including that I already told you. Ma'am has traveled widely and presented more than 70 research papers at national international conferences including International Studies Association conference held at Portland, US, and Forum of Federation conference organized at University of St. Gallen, Switzerland. Ma'am has also participated in panel discussions on foreign policy and security issues on Zee News, NDTV, other channels many a times. Ma'am is also a member of various professional organizations, NGOs, and she is associated with weekly webinar series of Kalingi Institute of Indo-Pacific Studies and Association of Asian Scholars, Politico's Dialogue, and she is having several interviews on security and contemporary issues on YouTube channel, etc. Ma'am will be taking her lecture today on revisiting philosophical basis of India's foreign policy, which is such an important subject for both the students of law as well as of political science. We as teachers are all students of our fields, and without mincing words, I'll say that really, ma'am, I'm really thankful to you for accepting our offer, being with us, and over to you. We are eager to listen to you. Thank you, ma'am. Thank you very much, Mayank, for such generous introduction. First of all, it's a great honor to be here in this refresher course organized by the University of Law and Political Science. And it's a great opportunity. The other day, Dr. Mayank had contacted me and he asked me to deliver a talk on this topic, any of the topics in political science. But I thought India's foreign policy is one of the topics that interests us all. And it has been changing, बहुत सारे changes हो रहे हैं इंडिया के foreign policy में. जब से शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं इसमें काफी बदलाव आ रहे हैं. क्या challenges हैं, क्या opportunities हैं, कहाँ इंडिया एक marginal state, एक marginal country था international politics में, और आज कहाँ एक global player, regional player के रूप में उभर रहा है. So I thought that I should talk about India's foreign policy. जब भी हम किसी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की बात करते हैं, तो हम लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी को किसी वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते हैं. वी हैव टू टॉक अबाउट द इंटरनल डायनामिक्स की किसी देश की इंटरनल कंडीशंस कैसी हैं. वी हैव टू टॉक इन अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं. एंड द लीडरशिप,
ये जो कुछ ये जो चीजें हैं, 3 factors we usually talk about. But I chose to talk about the philosophical basis of a country's foreign policies, particularly India's foreign policy, because I think that it was India's it was India's philosophical basis of its foreign policy that made it unique. क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है. जब भी हम कोई बात करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज नॉट फिटिंग इनटू एनी ऑफ द फ्रेमवर्क्स. So what was the philosophical basis of India's foreign policy? क्यों जब मैं philosophical basis की बात करती हूँ, Gandhian, Nehruvian, Ashoka's or Buddhist ideas of non-violence. India's foreign policy from the very beginning had been focusing on non-violence, peace, security, disarmament. इन सब चीजों के ऊपर उनका focus था. But we find out that in the 21st century, ever since Prime Minister Modi has taken over, the foreign policy appears to be shifting. ऐसे लग रहा है कि foreign policy में कुछ बदलाव आ रहे हैं और philosophical base थोड़ा change हो रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम non-violence से बिल्कुल debate हो गए हैं, but we are becoming more and more realist. There is a kind of movement, a movement from idealism, what people call from idealism to pragmatic realism. तो ये इसके बेसिस क्या है? Kautilya's philosophy, Saptang theory, or we talk about Mandala theory. These appear to be having reflection on India's foreign policy. जो आज की foreign policy, हम diplomacy, alliances, economic development, जितने भी ये चीजों की बात करते हैं, तो इसमें Kautilya की philosophy का reflection आता है. तो इससे पहले कि we talk about the historical trajectory of India's foreign policy, philosophical basis of India's foreign policy, I think that it is important to think or to discuss about why there has been lack of strategic culture in Indian thinking. हम जब भी बात करते हैं peace, security, शांति होना चाहिए, disarmament होना चाहिए, जब भी शुरू से हमने बात किया, तो क्या कारण था कि इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक कल्चर की कमी थी? कभी भी इंडिया ने किसी को इन्वेड नहीं किया, या अगर इन्वेडर्स आए भी तो उन्होंने मार के भगाया नहीं. They were not prepared, they didn't have this kind of thinking. तो क्या कारण था इस सब चीजों का? तो इसके लिए इंडिया की अगर हिस्ट्री को देखें तो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखें. इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, so in the beginning, India had been insulated by the geographical boundary. The geographical boundary was insulated by the natural borders. आप देखते हैं कि जो हमारा vast land mass है, ऊपर हमने Indus River, Himalayas, नीचे Indian Ocean, east में आप देखते हैं सारे forests, और west में आप देखते हैं सारे deserts. तो इन्होंने इंडिया को काफी insulated रखा बाहर से, और इंडिया के जो अंदर के लोग थे, it was such a resourceful country. People were very spiritual, very prosperous, very contented, और बहुत ही यहाँ पर prosperity थी. धीरे धीरे लोगों ने बाहर जाके ट्रेडिंग करना शुरू किया, और ये गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था. We used to sell our artifacts, our spices to western countries. बहुत सारा गोल्ड आया. साउथ में तो आपने देखा कितना गोल्ड आया, उसकी इंडिया ने वैल्यू भी सीखी. बट ग्रेजुअली जो ट्रेडर्स बाहर से आना शुरू हुए, तो उन्होंने ट्रेडिंग, पहले तो ट्रेडिंग ही करना शुरू किया, पर ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग इंडिया. और इंडिया के पास ऐसा स्ट्रेटेजिक कल्चर था नहीं. आपस में तो स्टेट्स की लड़ाई होती थी, वास्ट इंडिया था, उसमें आपस में स्टेट्स में कुछ कुछ लड़ाइयां होती थी, पर कभी ऐसा नहीं था कि कंट्री के बाहर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बॉर्डर से बाहर जाके किसी पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे ट्रेडिंग करने गए हैं या जहाँ पे कुछ करने गए हैं, वहां पर वो उसको कैप्चर करें या कुछ करें. पीपल यूज्ड टू गो देयर, लिव देयर पीसफुली. और हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारा कल्चर भी फैला, हमारी रिलीजन भी फैला, काफी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ा इन एरियाज में. But we find that India had no, since beginning, India had no culture of war, invasions, occupations and stuff like that. As a result of which, हम जो है victim हो गए. जब Muslim invaders आए, उन्होंने हमको invade किया, and then Britishers came and they invaded India. So at that time, we find that India was so prosperous at that time, because when Britishers came to India, हमारा total trade 25% of the total global trade. Can you imagine कि 25 से 30% तक हमारा जो था ट्रेड शेयर था ग्लोबल ट्रेड में. इतना रिच था इंडिया, पर सारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो था हमारा इंपीरियलिज्म की वजह से बिल्कुल खराब हो गया, सारे डिस्ट्रॉय कर दिया. और जब हमने आजादी मिली हमको, बिकॉज वी आर इन दिस 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ऑल ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत
अमृत महोत्सव। तो हमको ये जानना होगा कि क्या हुआ इंडिया के साथ जब हमने आजादी ली, तो हमको ये पता चला कि आजादी रियल होनी चाहिए। ये आजादी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई हमने आजादी ले ली है। बट एज यू नो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इट वाज फुल ऑफ कितना ब्लड शेड हुआ पार्टीशन के टाइम, पहले भी हमारा कितना। So we find कि उस टाइम हमारा जो हमने बाहर भी कोल्ड वॉर चल रहा था, अंदर भी इंस्टेबिलिटी थी, और हमने बट स्टिल वी डिसाइडेड टू हैव अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी बिकॉज वी जो हमारा कल्चरल वैल्यूज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वी ऑलवेज बिलीव्ड इट बिकॉज वी वर सच अ डाइवर्स कंट्री, बट स्टिल वी हैड यूनिटी, वी हैड we believed in the value of unity and diversity and peaceful coexistence. These were the basis of India's foreign policy. अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं, उनके आइडियाज ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर के बारे में अगर उनकी बात करें, तो वो कहते हैं कि भले ही पूरा विश्व जो है डिफरेंट बॉर्डर्स डिफरेंट कंट्रीज में बटा हुआ है, बट पीपल आउट borders, they are not your enemies. तो हमारी जो thinking थी वो बिल्कुल different थी। तो we believed in peaceful coexistence, and after independence we wanted to have democratic international system कि हर एक country, any country which exists in any part of the world, that should be independent, and that country should act independently, should not be monopolized, no country should interfere in the affairs of others. तो हम चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। पर ये जो thinking थी, it was dramatically opposite to the Western thinking. अगर Western realism की बात करें, जो मैं main thinkers आपको बताऊं, अगर realism में अगर देखें, first is Clausewitz. Clausewitz is the one who talked about war as a political instrument. Westerners तो हमेशा, अगर हम European history की बात करें, it is full of wars. European history is nothing but the history of wars. तो वहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी वो हमेशा weaponry के ऊपर ध्यान लगाते थे, और Clausewitz कहता था war जो है एक weapon है, एक tool है, एक यंत्र है अपने political objectives को achieve करने के लिए। Because what is the political objective? Power maximization. Power maximization is land and resources. तो आप अगर दूसरे देश के land और resources, उनकी सब चीजें छीनना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं और अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लड़ाइयां करनी ही होंगी। तो क्लॉज़विट्ज़ ये थी वेस्टर्न थिंकिंग, ये इन्होंने फॉरेन पॉलिसी का बेसिस प्रोवाइड किया हुआ था। अगर मॉर्गन थ्यू की बात करें, मॉर्गन थ्यू कहता था अपनी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस अगर पढ़ें तो उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है politics is nothing but struggle for power. Power maximization is crux of international politics. And for power maximization, you need to maximize your weaponry. Because अगर आप अपनी weaponry नहीं बनाएंगे तो आप victim हो जाएंगे violence के. So you need to have balance of power. तो आपका जो है, these Western countries had been focusing on weaponry, arms race, wars, and on the name of national interest, they were talking about power maximization. पर India ने इनको reject किया। फिर अगर आप मैकियावेली की बात करते हैं, मैकियावेली stated that each because जब भी मैंने कहा फिलोसफर लिखता है तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लिखता है। इटली के ऊपर इतने अटैक्स हुए तो मैकियावेली ने कहा कि ये जो भी आपके नेबरिंग है, इमीडिएट नेबर, जैसे कौटिल्य कहते थे, मंडला थ्योरी की अगर हम बात करें तो इमीडिएट नेबर इज योर enemy, so you can never trust your immediate neighbor. तो पर उन्होंने कहा कि जो आपके नेबर्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको वेपनरी चाहिए। किंग को बड़ा स्मार्ट होना चाहिए, शुड बी लाइक क्लेवर लाइक फॉक्स, वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीजें जो वेस्टर्न थिंकर्स या फिलोसफर्स बोल रहे थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रादर दे हैड देयर ओन कोर्स। और उनके फिलोसफिकल बेसिस क्या थे, उन्होंने कहा कि ना तो हम आर्म्स बनाएंगे ना ही, और दे रिजेक्ट and they criticized nuclear weapons, and they wanted the world to be free from nuclear weapons, that there should be complete nuclear disarmament. Gandhian ideas, उसने कहा कि Hitler cannot be won by super Hitlerism. I mean, you cannot violence को violence से नहीं काट सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें थी, और इंडिया का immediate challenge जो था economic development था। So they thought that instead of considering our neighbors as enemies or any of the countries as enemies, we will consider all the countries as our friends. We will try to have friendly relations with all the countries of the world. We will try to develop ourselves economically. We will not resort to arms. We will not resort to weaponry and things like that. पर एक बात है कि उस टाइम कुछ साइंटिस्ट थे, हालांकि 1960s में जब इंडिपेंडेंस 47 में 40s 50s में इंडिया वाज
was very underdeveloped, I must say. हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशंस, हमारी मिलिट्री कंडीशंस और कुछ टेक्नोलॉजी डिप्रिवेशन का हमारे ऊपर वो था. वेस्टर्न कंट्रीज वर डिप्राइविंग अस ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स एज वेल. तो उस टाइम हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, those who were interested in developing the strategic policy for India, and they wanted strategic developments in India. इसमें मैं दो साइंटिस्ट का नाम बताऊंगी आपको. एक तो जहांगीर होमी भाभा, who was father of India's nuclear research. तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कहा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब, उनके कहने से ही उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च टाटा, पहले तो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू की गई, फिर उन्होंने एक और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया जिसको कि बाद में उनकी डेथ के बाद बार्क बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम रखा गया. तो वो कहते थे कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो हालांकि 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर रिसर्च की बात की गई थी. एक तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज सो अंडर डेवलप कि न्यूक्लियर रिसर्च से, पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च से पूरे गांव तक हम बिजली पहुंचा सकते हैं. फिर उन्होंने कहा कि इसको मेडिसिन और दूसरी चीजों के लिए भी हम अपनी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इट्स सच अ वास्ट लैंड, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उन्होंने काफी मेथड्स डिवाइस किए, पर उनको ये पता था कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और ये भी पता चल गया था कि चाइना, हालांकि माओ सेतुंग न्यूक्लियर बॉम्ब को पेपर टाइगर कहता था, बट इट वाज नोन इन 50s दैट चाइना वाज ट्राइंग टू एक्वायर न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड रशिया ने तो बहुत ही पहले बना लिया था. तो वो ऐसे कहते थे कि अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, न्यूक्लियर, तो उससे क्या है, आप डिटर कर पाएंगे अपने एनिमीज को. पर नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया वहां पर 50s में या 60s में, अर्ली में, कि वो कहने लगे कि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यू नीड टू हैव कंसेंसस इन पार्लियामेंट, और उनको लगा कि इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा. तो और दूसरा मैं बताना चाहूंगी विक्रम साराभाई का. तो विक्रम साराभाई जो था, उन्होंने स्पेस सेंटर बनाने की जो बात की है, दोनों ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन से आए थे, दोनों साइंटिस्ट बहुत ही पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे और बहुत ही नॉलेजेबल थे. तो उन्होंने कहा साराभाई जी ने कि, और उस टाइम अबुल कलाम आजाद भी उनके साथ ही थे एज अ यंग रिसर्चर. तो उन्होंने कहा कि आप ये स्पेस सेंटर हम बनाते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्पेस सेंटर अगर बनाएंगे, सैटेलाइट लगाएंगे, तो उसको सर्वेलेंस के लिए रखा जाएगा, इससे हमारे पड़ोसी देशों के वो खराब हो जाएंगे, मिलिट्री पर्पस के लिए हमें कुछ नहीं करना. फाइनली उन्होंने अप्रूवल लिया कि अच्छा, एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करेंगे, इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. तो फाइनली उनको ग्रीन सिग्नल मिला और उन्होंने बनाया. इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी उनके साथ कि आप सोचिए कि एक कंट्री, आज तो हम इतना एडवांस्ड कंट्री हैं और हम ताज्जुब करते हैं कि हमने इतना वैक्सीन बना लिया और हमने पूरा वर्ल्ड को से अपने आप को इंसुलेट कर लिया, दैट वी आर नॉट अलाउइंग द फॉरेन वैक्सीन टू कम टू इंडिया, पेनिट्रेट इन इंडियन मार्केट. वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट. बट थिंक ऑफ इंडिया ऑफ 1960s. 1960 में जब आप कह रहे हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ बुल्लक कार्ट, इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, इज अ कंट्री ऑफ बैगर्स, एंड इट्स और कभी जिंदा रह नहीं पाएगा, it won't be able to survive, there are so many diversities, so many conflicts, इतनी नेगेटिविटी है इंडिया के बारे में, और इंडिया ऑलवेज इन द कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन. पर उस टाइम इंडिया स्पेस सेंटर बना के अब रॉकेट लॉन्च करने वाला है. सो इट वाज एन इंटरनेशनल न्यूज. 1960s में शिकागो ट्रिब्यून और दूसरी जगह से जब जर्नलिस्ट आए, तो वो वहां पे साइट पे पहुंचे जहां से शाम को 6 बजे रॉकेट लॉन्च होना था. तो जब वो पहुंचे वहां पे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा रॉकेट कौन से लॉन्च होना है. तो अचानक ही पता चला कि एक बुल्लक कार्ट पे यहाँ पे साराभाई खुद ही रॉकेट को रख के और वो उस पे ला रहे हैं साइट पे, और वो कहते दिस कंट्री, आई वेस्टेड माय टाइम कमिंग ओवर हियर, कि ये कंट्री लॉन्च करेगा, ये यहाँ पे बैलगाड़ी पे लग के ला रहे हैं रॉकेट को, ये रॉकेट लॉन्च करेंगे. और उन्होंने, आप जस्ट सोचिए कि उस टाइम हमारी क्या कंडीशन थी और हमारे साइंटिस्ट कितने बेहतरीन थे और क्या उनमें जज्बा था करने का और क्या कुछ वो कर सकते थे. आप ये, इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग इफ यू रीड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अवर स्टूडेंट्स. और ऐसा हुआ कि उन्होंने उस रॉकेट को वहां लगाया और शाम को 6 बजे वो रॉकेट वहां से लॉन्च होना था. तो अचानक वो उसको टेस्ट करने आए, जैसे अभी इन्होंने, मयंक जी ने मुझे टेस्ट किया था कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, माय सिस्टम इज वर्किंग और नॉट. तो वहां पर वो लॉन्चर चेक करने गए कि रॉकेट लॉन्चर काम कर रहा है कि नहीं, कि 6 बजे रॉकेट लॉन्च करना है. तो उन्होंने जब रॉकेट लॉन्च करने गए तो वो लॉन्चर काम ही नहीं किया.
और वो सोचने लगे अब क्या करें, अब ये इसमें अगर ये स्नैग है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत दूर है, अगर इसमें ये मशीनरी में खराबी है, इसको किसी भी तरीके से हम कहीं से भी जाके कैसे भी करके अभी 6 बजे हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो सारा भाई अभी जाके अनाउंस ही करने वाले थे कि ये लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो उतने में ही ये जहांगीर होमी बाबा, ही वॉज अ फ्रेंड, ही केम एंड ही सेड वी विल लॉन्च इट एट 6. He didn't listen to Sarabhai. Sarabhai was the father of that rocket plan and everything. But Jahangir Homi Baba कहते कि नहीं, 6 बजे तो 6 बजे, और इसको हम 6 बजे ही लॉन्च करेंगे. And he went back और पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है. वो कहते हैं ये सोल्यूशन है कि टेक्नीशियन लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो रहा. तो वो यही पूछते जा रहे हैं कि और क्या सोल्यूशन है, और क्या सोल्यूशन है, और क्या सोल्यूशन है. फाइनली होमी बाबा, जहांगीर, ये विक्रम साराभाई कहते हैं सिर्फ मैनुअली हम लॉन्च कर सकते हैं. मैनुअली कैसे? रस्सों से बांध के. कैन यू जस्ट इमेजिन, दोनों साइंटिस्ट आगे और पूरी भीड़ पीछे. वो जो मैम वॉइस चली गई आपकी. मैम हेलो. हाँ, am I audible? No, voice is coming. Please log off and re-log in. मैम की वॉइस आ रही है. Please continue, मैम. तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम, अगर हम इस स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को, स्ट्रैटेजिक, मैम वॉइस नहीं है. संजय जी, प्लीज यू आर डिस्टर्बिंग द लेक्चर. आप अपना लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लीजिए. प्लीज मैम, प्लीज कंटिन्यू प्लीज. तो उस टाइम बाकी सबको तो आ रही है ना आवाज. तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हमने उस टाइम, जो हम अगर उस टाइम प्रेपरेशन शुरू करते या कुछ करते तो हम आज कहीं और पहुंचे होते. पर हमने बहुत पीस, डिसआर्मामेंट, डीन्यूक्लियराइजेशन, इस पे ज्यादा जोर लगाया. और यही कारण था कि सिंस इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड फेसिंग सीरियस चैलेंजेस एंड वी सफर्ड अ लॉट. सबसे पहले तो एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द कश्मीर इशू. जो पाकिस्तान विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थियरी और हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड पे ही उनका सर्वाइवल का इशू रहा. उन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि आपको सबको पता है कि जब आज़ादी मिली थी तो सभी राज्यों को कहा गया था, जो प्रिंसली स्टेट थे, कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं. पर वो प्लेबिसाइड से नहीं, राजा ही डिसाइड करता था. तो कश्मीर जो था, हिंदू राजा था और पॉपुलेशन मुस्लिम थी मेजोरिटी. पर राजा ने डिसाइड किया, हरि सिंह जी ने, कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे. बट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस Pakistan had dispatched so many, what you say, raiders, tribal group के जो raiders थे उनको भेजा, और immediately इतने सारे वो एकदम से वॉक इन कर गए, इतने स्ट्रॉन्ग थे हथियार लिए हुए कि अंदर वॉक इन करके. तो हरि सिंह जी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि वो उनको रोक पाते. तो उन्होंने नेहरू जी से हेल्प मांगी, पर नेहरू जी हेल्प नहीं कर सकते जब तक कश्मीर इंडिया का पार्ट ना हो. सो फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया. इसमें एक थोड़ा सा लीगल पॉइंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ला रही हूँ. तो जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, सो लीगली इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया एंड इमीडिएटली इंडिया हैड डिस्पैच्ड इट्स फोर्सेस टू कश्मीर. एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमने सून, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वॉर थी, और हमने ग्रेजुअली सारे रेडर्स को बीच तक निकाल दिया कश्मीर से बाहर. पर हमने देखा उस टाइम थोड़ा वेदर चेंज हो गया, ठंड होनी शुरू हो गई, टेरर का पूरा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी ऐसे थे, बड़े टफ कंडीशंस थे. तो माउंटबेटन जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को सजेस्ट किया कि आप इसको यूएनओ में ले जाओ, क्योंकि ये वॉर बहुत और जो है वो फ्री हो जाएगा और आप उसमें पीसफुली इसको एक्वायर कर पाएंगे. तो नेहरू जी ने ये माना और इसको यूएन ले गए. पर हम देखते हैं कि यूएनओ इसको एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया. कहा कि कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड देयर शुड बी प्लेबिसाइड. रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि यूएसए से बड़ी इंपॉर्टेंट रही है. आप देखते हैं कि ब्रिटेन भी पूरे एशिया को जो हैंडल करता था, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन से पूरा ट्रेड निकलता था. सो इंडिया वाज स्ट्रेटेजिक. थ्रू इंडिया दे वर कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सो यूएसए हैड रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड चाइना आल्सो बिकेम अ, पर ये पता चल रहा था कि वहां पे कम्युनिज्म का वो चल रहा है. तो वो चाहते थे कि इन दोनों एरियाज
से रहेंगे। तो उनको पता था जो गिलगिट एंड बाल्टिस्तान दो कश्मीर के, they had geographical proximity to the Central Asian Republics of USSR और चाइना। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एरिया कश्मीर जो है इंडिया को दे दिया जाता है तो गिलगिट और बाल्टिस्तान भी इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, तो तब इन कंट्रीज को, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए को इस एरिया का एक्सेस नहीं रहेगा। इसलिए वो जानबूझ के चाहते थे कि ये एरिया पाकिस्तान के पास ही रहे और उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर करके, और ये कहा कि बोथ द countries should withdraw their forces and they should have. I just wanted to say hello. Carry on. So both the countries should withdraw their forces from here and they should have a plebiscite. तो नेहरू ने शुरू में उसको एक्सेप्ट किया, फिर बाद में उन्होंने हालांकि मना किया क्योंकि प्लेबिसाइट से तो कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं था और ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो गया था तो लीगली। तो हम देखते हैं उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने 3 लड़ाइयां भी लड़ी और ये सब हुआ। तो इंडिया का जो बिलीफ था पीस में, जो इंडिया का फेथ था, नेहरू जी का फेथ था वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेसी में, ये सारा जो है इट वाज बिलाइड क्योंकि इंडिया को लगा। उसके बाद रशिया हमारी हेल्प के लिए आया, हमेशा उन्होंने वीटो करा। Russia always stood with India on the issue of Kashmir against these Western countries. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि after that also Pakistan with the help of alliance, they had 3 wars against India. पर had a nuclear explosion. They realized that they won't be able to win war against India, so they resorted to of secret warfare, proxy warfare, through terrorism. आपको पता है कि टेररिज्म वही कंट्रीज यूज करते हैं जो वीक होते हैं, जो सामने से नहीं लड़ सकते हैं, तो वो हिडन वॉरफेयर करते हैं। तो इंडिया के खिलाफ भी जो पाकिस्तान मिलिट्री फोर्स थी उन्होंने ट्रेडर्स तैयार किया, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के बारे में आपको पता है कि कैसे मुजाहिदीन को वहाँ ट्रेन किया गया और कोल्ड वॉर के बाद ये सारे के सारे जो टेररिस्ट थे वो कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए। कितना कश्मीर इसका एक्सोडस हुआ कश्मीर से, कितना वहां पे ब्लड शेड हुआ। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली on fighting against India. Even 1999 में जब हमारा न्यूक्लियराइजेशन हुआ, 98 में जब न्यूक्लियराइजेशन हुआ, India also became nuclear, Pakistan also became nuclear. Pakistan threatening India's conventional war. उन्होंने अपना बढ़ा दिया terrorism because under the garb of nuclear shelter, जो nuclear power थी, they had intensified the terrorism in Kashmir. So we find that just a minute. So we find that they have intensified their terrorism in Kashmir, and India was not able to do anything, but it was, better somebody has to be there outside, nobody should come, है ना? My talk is going on, अभी बाहर बैठिए आप। So हम इसके अलावा मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी after Uri and Pulwama, for the first time, the government took the decision of surgical strikes, which has mitigated Pakistan's terrorism, but it has not eliminated because China continues to support. Then Afghanistan factor is also there. So many things are there. So Pakistan is bent on fighting against India. एक तो इसका कारण ये है कि उनका सर्वाइवल ही इंडिया स्टैंड, वो हमेशा पैरिटी चाहते थे इंडिया के साथ। एक तो उन्होंने शुरू से ये कहा कि हमें इक्वालिटी नहीं मिली क्योंकि वो वो वेस्ट से ईस्ट तक पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान चाहते थे। जिन्ना ने कहा था इट इज द मोस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान दैट वी हैव गॉट। तो शुरू से ही वो इंडिया के खिलाफ थे, आधी वेपनरी चाहिए, आधी पैसा चाहिए, सब कुछ उनको आधा आधा चाहिए था। सो देयर हैड बीन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो आई एम सेइंग दैट इट इज बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद पाकिस्तान, सो वी सफर्ड सो मच। दूसरा फैक्टर मैं आपको चाइना के बारे में बताना चाहती हूँ। चाइना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन देयर, they started from the beginning because we didn't have any strategic culture, and that's why we landed in this kind of situation, and now we are trying to handle these problems. तो अगर चाइना की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि जो नेहरू थे, पंडित नेहरू, जब यहाँ पे कम्युनाइजेशन आया 1949 में चाइना को, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना। चाइना को सबसे पहले इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया।
वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। इंडिया वांटेड टू हैव फ्रेंडशिप विद चाइना क्योंकि उनको लगता था कि वी शेयर्ड कॉमन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस हमारे कॉमन है। तो हम जो दोनों चाइना और इंडिया जो है, हम बहुत द बिगेस्ट कंट्रीज इन एशिया, और अगर हम दोनों फ्रेंडशिप करेंगे, वी विल जॉइन हैंड्स, देन वी कैन इन्फ्लुएंस एंटायर एशिया। तो नेहरू का ये समझना था कि चाइना जो है वो अगर इंडिया के साथ आ जाता है तो हम पूरे एशिया में लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड वॉर को इस एशियन रीजन में आने से रोक पाएंगे। पर चाइना का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट था। चाइना ऑलवेज ट्रीटेड इंडिया एज अ कंपेटिटर। चाइना नेवर वांटेड इंडिया टू बी एट पार विद चाइना। चाइना जो था वो खुद ही एक लीडर बनना चाहता था थर्ड वर्ल्ड का, और चाइना ये चाह रहा था कि किसी तरीके से इंडिया को, तो उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो थी वो सुन त्सू की पॉलिसी थी कि ट्राई टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग वॉर, कि उन्होंने रोड्स बनाने शुरू किए। और अक्साई चीन एक ऐसा एरिया था, स्ट्रेटेजिक एरिया था। कहा जाता है कि इंडिया को शुरू से ही पता था कि वहां पे वो रोड बना रहे हैं, पर हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ना ही हमने कोशिश की कि अगर वो वॉर देखे 1949 से 1962 में लंबा एरिया था, लंबा टाइम था, टाइम पीरियड था। अगर रोड बन रही थी वहां पर, स्ट्रेटेजिक रोड बन रही थी, इंडिया ने सिर्फ पंचशील का सहारा लेने की कोशिश की, हिंदी चीनी भाई भाई, कि हम पीसफुल रहेंगे, हम फ्रेंडली रहेंगे, चाइना के साथ लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि रोड ही तो बना रहे हैं। बट रोड है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जहाँ पर रोड है इमीडिएटली आप फौजें पहुंचा सकते हो। अभी भी तो हम बना रहे हैं ना, हमने एक रोड बनाई है स्ट्रेटेजिक ले से बेग वहाँ कोराकोरम पास तक 220 किलोमीटर की हमने रोड बनाई है, और ताकि हम इमीडिएटली अपनी फौजों को वहां पे वो कर सके। तभी तो गलवान वैली का प्रॉब्लम हुआ। चाइना डजंट वांट, चाइना खुद तो प्रिपरेशंस कर रहा है, पर इंडिया अगर अभी प्रिपरेशंस कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि जो चाइना है उसने अपने इंडिया को इंडिया उसमें हार गया, बिकॉज हमारी फौजें तैयार नहीं थी। हमने जो फौजें भी वहां पर भेजी, कहा जाता है कि ना तो उनके पास प्रॉपर कपड़े थे, ना उनके पास जूते थे, ना खाने के लिए कुछ था, और सब हार गए, मर गए, और मतलब इट्स वेरी पैथेटिक। उससे नेहरू को बहुत धक्का लगा, और उसके बाद नेहरू ने मिलिटराइजेशन, दैट देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन आर्म्स डेवलपमेंट एंड देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन आर्म्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें आर्मामेंट्स बनाने होंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, और हमें अपने आप को ताकि हम इन कंट्रीज को, क्योंकि हमारे सोचने से नहीं होता, हम चाहे डिसआर्मामेंट, हम चाहे पीस, हम चाहे सुरक्षा, हम चाहे नॉन वायलेंस, बट अदर कंट्रीज आर नॉट बिहेविंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट। So if in international politics, if other countries are violating our territorial integrity, if they are violating our sovereignty, then we have to, हमारा पहला जो दायित्व है लीडरशिप का, वो है टेरिटोरियल सिक्योरिटी, अपने लोगों की सुरक्षा, अपनी जगह की सुरक्षा, अपनी सोवरेनिटी की सुरक्षा। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ट्विस्ट मिलता है। 1968 में फिर एनपीटी हम साइन करते हैं, हम ही थे जिन्होंने एनपीटी को प्रपोज किया था। पर जिस तरीके से एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी आई, कि जिनके पास नहीं है वो नहीं बनाएंगे, जिनके पास है वो बढ़ा भी सकते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, देखिए 5 कंट्रीज का न्यूक्लियर क्लब है, और वही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, उनके रोक भी नहीं लगाई गई। पर इंडिया कहता था अगर डिसआर्मामेंट है तो देयर हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर वेपन्स अगर आप हमें रोकना चाहते हैं तो पहले आप अपने खत्म कीजिए। अगर आप बना के रखेंगे तो आप हमें डराते रहेंगे। अब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया को भी तो बनाने पड़े। सो वी फाइंड दैट इंडिया रिजेक्टेड इट। और 1971 में देयर वाज अगेन अ मेजर चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यूएसए ने चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया which created imbalance in South Asia, और उसके लिए हमने भी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रशिया के साथ फ्रेंडशिप की। इससे हमारी नॉन अलाइनमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला, कहने लगे इंडिया वाज अ नॉन अलाइंड कंट्री, व्हाई नाउ दे हैव साइंड अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। सो नॉन अलाइनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड वी मॉडिफाइड दिस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि अगर आपका किसी के साथ एग्रीमेंट है तब भी आप नॉन अलाइनमेंट, तो इट बिकेम अ मूवमेंट। हमने अगर इसको मॉडिफाई किया, दैट वाज आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। सो 71 के बाद हम देखते हैं कि देयर हैड बीन
competition, complete competition. There was bipolarized world politics. UN या USSR जो एशिया में पूरा रीजन जो है वो कोल्ड वॉर से अफेक्ट हो गया. हमारे जो गैप्स थे चाइना और पाकिस्तान के साथ कम होने के बजाय बढ़ते चले गए. एक सेइंग है बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो क्या कहा जाता है, द पीस कैन टेक प्लेस वेयर यूएस वांट्स एंड पीस कैन नेवर हैपन वेयर यूएस डजंट वांट. तो अगर साउथ ईस्ट एशिया में वो पीस चाहता था तो यूएसए ने वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट और भी भयंकर थे, वहां तो पीस आ गई. पर इंडिया और पाकिस्तान की वजह से अगर यूएसए नहीं चाहता तो पीस नहीं आई. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं बढ़ते ही चले गए क्योंकि चाइना also became an ally, close ally of US, and Pakistan also became a close ally, and they were fighting against, they were constantly creating problems for India. तो अब यहाँ पे ये होता है कि इंडिया ने 74 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके बाद अपनी ब्लू वाटर नेवी को बढ़ाया और ये सब किया. तो इससे इंडिया वाज डेमोनाइज्ड. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया दैट इंडिया इज अ रोग नेशन, इंडिया इज अ हेगेमोनिक कंट्री, इट इज ट्राइंग टू हेगेमोनाइज द एंटायर रीजन. कि न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, पर इट वाज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. पर क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं किया था, हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑब्जर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम तो कह रहे थे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, पर हमारे पास इतना न्यूक्लियर फ्यूल था कि हम 20 बॉम्ब तक बना सकते थे और यूएसए के सैटेलाइट्स वगैरह को तो सब दिखता ही था. तो वहां पर हम उनको इंस्पेक्शन नहीं करने देते थे. तो इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ डेटरेंस. आप देखते हैं 74 के बाद चाइना और पाकिस्तान ने कभी डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश नहीं की इंडिया को. इट बिकॉज ऑफ अवर न्यूक्लियर पावर. तो यहाँ पर हमने इसको हिडन रखा, कंसील्ड रखा, एक हमें स्टेटस मिला. उसके बाद हमने अपनी वेपनरी को बढ़ाने की कोशिश की. वी बिकेम सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर पावर, या अभी पूरा न्यूक्लियर पावर नहीं, पीसफुल न्यूक्लियर कंट्री. और इसके अलावा हम सिक्स्थ ब्लू वाटर नेवी भी बने. तो इससे जो रोग नेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो दैट वाज टू सेपरेट, टू आइसोलेट इंडिया फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज. अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप साउथ एशियन रीजन को देखें, आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि इंडिया इज द मिडल ऑफ साउथ एशिया. बाकी सारी कंट्रीज जो हैं दे आर एनसर्कलिंग इंडिया. आप देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, दे आर एनसर्कलिंग इंडिया. ऑल ऑफ देम आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया, बट दे डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद ईच अदर. जिसकी वजह से क्या है, और इंडिया इज सच अ वास्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारे यहाँ मुस्लिम, हिंदू, ये सब कोई है और हम डेमोक्रेटिक हैं, हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, हमारी पावर भी बढ़ रही है. तो इससे इन कंट्रीज को और 71 में जैसे हमने बांग्लादेश को उनकी डेमोक्रेटिक अपना सॉवरेनिटी के लिए हमने हेल्प किया. तो इससे इन कंट्रीज को लगता था दे यूज टू परसीव इंडिया एज अ थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी. तो इंडिया का ये कहना था कि इंडिया हैज नेवर used its power to hegemonize its neighboring countries or to hegemonize the region. जहां पर भी अगर बांग्लादेश में भी गए वहां से भी हमारी फौजें वापस आई, हमने वहां पर कोई उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं की. तो इंडिया का इतना बड़ा लैंड है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना ज्यादा बॉर्डर्स हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सब फौजें चाहिए. और वो इंडिया चाहता था कि आप सब भी हमारे साथ आए तो हम आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. जैसे आप देखते हैं मालदीव्स में या कहीं श्रीलंका में या कहीं पर भी अगर सुपर पावर कोई भी घुसने की कोशिश करता था, यहाँ पर भी 7th फ्लीट आ गया था बे ऑफ बंगाल में 1971 में. तो इंडिया नहीं चाहता था कि सुपर पावर्स जो है इस तरीके से मिलिट्री प्रेजेंस हो साउथ एशियन रीजन में. और इंडिया वाज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग इन दीज एरियाज, बट एज सुन एज इट्स मिशन वाज ओवर इंडिया वाज विड्रॉइंग फ्रॉम दीज एरियाज. तो इंडिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि वो इन्वेड करेगा, हेगेमोनाइज करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. इंडिया का बेसिक रीजन यही था कि वो कोल्ड वॉर से इस रीजन को अलग रखे, मिलिटराइजेशन से अलग रखे, सुपर पावर्स की प्रेजेंस से अलग रखे. तो इसलिए पर इंडिया जो था उनके लिए आइसोर था, यूएसए के लिए कॉन्स्टेंटली आइसोर था, क्योंकि यूएसए ये समझता था कि इंडिया की वजह से ही कुछ नहीं हो रहा. तो इसलिए टेररिज्म को उन्होंने भी जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हम देखते हैं कि टेररिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा था, इंडिया ने हमेशा कहा कि इंटरनेशनल दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म. तो इसको अमेरिका ने भी यही रिकॉग्नाइज नहीं किया और ये कहा कि जो पाकिस्तान कहता था उसी को एक्सेप्ट किया जाता था, दैट इज द फाइट ऑफ कश्मीरियंस फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. तो हमारा जो वी वर ऑन द periphery, we were not listened, we were in a compromising condition. So India was, but
फिर क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन आया 1990s में. इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड, देयर वाज डेफिसिट इन फाइनेंशियल बैलेंस, और फाइनली हमने इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग किया, लिबरलाइजेशन प्रोसेस ज्वाइन किया. यहाँ से इंडिया में ट्विस्ट आता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में. आज तक हम एंटी वेस्टर्न पॉलिसी को फॉलो करते थे, बट नाउ इंडिया डिसाइडेड टू यूज ऑल द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, ऑल वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंडिया चाहता था कि वेस्ट कंट्रीज से, वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूएसए से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी कल्चरल कम्युनैलिटी इतनी थी, हिस्टोरिकल कल्चरल कम्युनैलिटी इतनी ज्यादा थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की वजह के साथ, कि बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर देयर वाज अ काइंड ऑफ गैप, हम उनके इतने क्लोज नहीं आ पाए. तो अब यहाँ पे उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी हमने शुरू की इंडिया ने, कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दे आर एडवांस्ड, इकोनॉमिकली दे आर एडवांस्ड, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इकोनॉमिकली बाय कोलैबोरेटिंग विद दिस कंट्रीज. तो इंडिया ने अडॉप्ट की नॉन अलाइनमेंट से इंडिया मूव टू द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलायंसेस, कि अभी इंडिया को मल्टी अलायंसेस पॉलिसी करने होंगे. इंडिया को हर एक कंट्री के साथ डेवलप अपने रिलेशंस बनाने होंगे, यूएसए के साथ भी बनाने होंगे, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी बनाने होंगे. इफ इट इज अलाइनिंग विद यूएस एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, तो रशिया को भी नहीं छोड़ेगा फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजंस, उसको एनर्जी की भी जरूरत है. और इसके साथ साथ चाइना के साथ, इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ चाइना. लिबरलाइजेशन के दौरान चाइना ने जो टेक ऑफ किया 2008 के बाद, चाइना को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, इट बिकेम एन इकोनॉमिक पावर हाउस. इसमें इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ, डिस्पाइट अवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, हमारे काफी डिस्प्यूट्स थे उनके साथ, क्योंकि हर साल चाइना एटलीस्ट 200 स्क्रिमिशेस करता है हमारे बॉर्डर्स पे लगातार. वहां पर हमको पता नहीं चलता, पर कुछ ना कुछ वहां पर होता ही रहता है. पर हमने ये कहा कि हमें उनसे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं, अपनी इकोनॉमी को हमें अच्छा करना है. तो चाइना जो हमने मल्टी अलायंसेस पॉलिसी करी, और हमने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए. ब्रिक्स है, आसियान, स्कोप, साउथ ईस्ट, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, इसके साथ भी गल्फ के साथ हमने उनका ग्रुप ज्वाइन किया. वी ज्वाइंट क्वाड के बारे में मैं बाद में आती हूँ, बट देन फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस वी ज्वाइंट लॉट ऑफ ग्रुप्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of India, and gradually India's position started changing economically. We started moving from the peripheral position to a middle range nation condition. पर ये जो कहा जाता था China and India are the biggest economic powers in the Asia, इसमें चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इंडिया किसी भी तरीके से चाइना का कंपेटिटर बने. और चाइना इतना कंपेटिटिव था कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन्स थी वो वहां पर एस्टेब्लिश की गई. सो हम देखते हैं, एक तो हमने मल्टी अलायंसेस की पॉलिसी अडॉप्ट की, और दूसरी बात ये है कि जो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव पॉलिसी बनाया, क्योंकि दे वांटेड टू एक्टिवेट इट. लुक ईस्ट पॉलिसी की सिर्फ लुक नहीं करना, वी हैव टू एंगेज. तो नॉर्थ ईस्ट से हम अपना कॉरिडोर बनाते हैं टू कनेक्ट टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सो दैट वी कुड हैव कल्चरल एक्सचेंज, वी कुड हैव इकोनॉमिक एक्सचेंज, ताकि हम अपने रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो है वो स्ट्रेंथन कर सकें. इसके अलावा हम देखते हैं कि वी आर आल्सो परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड नेबरहुड, कि अभी तक तो हम नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, पर अभी हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया है, कि अलायंसेस तो मेजर पावर्स के साथ, अगर यूएसए के साथ रिलेशंस है तो रशिया के साथ भी रखेंगे, यूएसए के साथ है तो चाइना के साथ भी रखेंगे, अगर यूएसए के साथ है तो ईरान के साथ भी रखेंगे. तो एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी में उन्होंने कहा कि वेस्ट एंड ईस्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. ईस्ट एशियन कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, कि यहाँ पर हमारी कोलैबोरेशन से आर्थिक दिशा अच्छी होगी. और इसके अलावा जो चाइना और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यूएसए, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको क्या लगता है, क्योंकि उनको चाइना एक हेगेमोनिक पावर, एक थ्यूसिडाइट स्ट्रैप
वर्ल्ड इज इन द एक्सक्लूसिव राइट्स ट्रैप, क्योंकि चाइना जो है वो एक वर्ल्ड पावर की तरह उभरना चाहता है, because it has used the entire opportunity of liberalization and has emerged as an economic powerhouse, और अपनी सारी प्रोस्पेरिटी को मिलिटराइजेशन के लिए यूज करना चाहता है। और पूरे वर्ल्ड में आपको पता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने यूज किया था, सब में अपने रोड्स बना लिए, सिल्क रोड बना लिए, दैट इज टू ऑक्यूपाई दीज एरियाज। सबको डेट ट्रैप में एंगेज कर रहा है और वहां के उनके एरियाज को कंट्रोल कर रहा है। जब वो डेट नहीं पे कर पाते उनके एरियाज को ले रहा है। आधा अफ्रीका वो खरीद बैठा है। हमारा श्रीलंका में देखे क्या हाल हो रहा है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या हाल हो रहा है। जो इसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया 2014 में, इससे चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिली इन सब देशों में घुसने की, और ये सब देश भी सोचने लगे कि इतना मैसिव डेवलपमेंट होगा और ये सब होगा। इसके अलावा जो चाइना है ये काफी आइलैंड्स बना रहा है साउथ चाइना सी में, और नाम भी ऐसे रख रहा है, साउथ चाइना सी उसका नाम रख दिया उसने, ट्रेडिशनल नाम ला रहा है वापस। और वहां पे जो जहाँ पे नैरो वाटर है वहां पे उसको मिट्टी को भर के वहां पे आइलैंड्स बना रहा है और उनको मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना कह रहा है कि इट इज क्लेमिंग ऑल दोज एरियाज विच इज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ चाइना। जैसे तैवान है, उसको हांगकांग है, तैवान है, सिंगोको आइलैंड जो कि जापान का पार्ट है, तो ये सारे एरियाज को वो कंट्रोल करना चाहता है। और इसलिए जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए है, उसको पसंद नहीं है कि तैवान को चाइना कंट्रोल कर पाए या सिंगोको आइलैंड को, इसलिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ये सारे इंडिया की तरफ देखते हैं। इंडिया इज अट्रैक्टिंग ऑल दिस कंट्रीज बिकॉज दे थिंक दैट इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ऐसी जगह पे बैठा है जो कि चाइना का नेबर है, और इसके थ्रू ही हम चाइना को, जैसे चाइना के थ्रू उन्होंने रशिया को काटा, ऐसे वो सोच रहे हैं अब इंडिया के थ्रू वो चाइना को काट पाएंगे। तो इंडिया का भी अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इज पोजिंग सीरियस थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया के लिए क्या कुछ कर रहा है, अभी पूरा एनसर्कलमेंट कर दिया उसने, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की छोड़िए, उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है सब जगह उसने अपने वो कर लिए हैं। सी पैक बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिंगजेंग एरिया टू ग्वादर, कि ग्वादर में पहुंचते ही आप गल्फ तक भी पहुंच रहे हो, इंडियन ओशन में भी आ रहे हो, और साउथ चाइना सी को कंट्रोल करके आप इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो सारी वाटरवेज है ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 70% ऑफ इंडिया स्ट्रेट पैसेज थ्रू इंडियन ओशन, 50% ऑफ इंडिया स्ट्रेट पैसेज थ्रू मलक्का स्ट्रेट। तो यहाँ पे इंडिया नहीं चाहता कि चाइना इन एरियाज को कंट्रोल करे, तो चाइना भी, इंडिया भी अकेला उसको चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, तो वो भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया ने हैंड ज्वाइन किए हैं। सो वी फाइंड कि जो चाइना हमें कंस्टेंटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, चाइना वांट्स इंडिया टू रिमेन एंगेज्ड इन टेररिज्म, एंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगेज्ड इन वॉर्स, शुड नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, सो दैट चाइना शुड बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि बाय 2049 इट शुड एमर्ज एज एन अनचैलेंजिंग वर्ल्ड पावर। 100 years कंप्लीट होंगे चाइना के कम्युनिज्म के, और by then China wants to emerge as an unchallenging superpower in the world politics। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना एक टेररिस्ट अथॉरिटेरियन नेशन है। जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे सप्लाई चेन्स लगाई थी तो सोचा था धीरे धीरे डेमोक्रेटिक हो जाएगा, पर चाइना ने अपना अथॉरिटेरियन और उसके ऑब्जेक्टिव्स, वॉर्स, एक्सपेंशन, और वो उसे सुनजू पॉलिसी पे ही चलता है, विनिंग वॉर विदाउट फाइटिंग। जो रोड इनिशिएटिव था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये भी था टू ऑक्यूपाई दिस कंट्रीज विदाउट फाइटिंग वॉर। तो धीरे धीरे इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो इंडिया एंड दीज कंट्रीज, इंडो पैसिफिक कंट्रीज एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, दे हैव कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू, हालांकि हम क्लोजर आ रहे हैं पर इंडिया स्टिल मेंटेन्स इट इंडिपेंडेंट स्टैंड। कोविड-19 में आपने देखा हाउ आवर इंटरनेशनल एजेंसीज फेल्ड। चाइना ने उस अपॉर्चुनिटी को, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। When the whole world had landed in such a serious problem, all the countries were busy fighting with COVID, China was busy in expanding. China was trying to expand all over. हर जगह वो expand करने की कोशिश कर रहा था। So it's a very clear that China से
some people had suspicion that it was a chemical warfare, biological warfare, or whatever. पर अभी इसका कोई complete evidence नहीं है, क्योंकि चाइना ने allow भी नहीं किया. International agencies कह रहे थे कि हम inspection करना चाहते हैं कि कहाँ से वुहान वायरस आया. चाइना ने उसको भी allow नहीं किया. UNO में ले जाने के लिए भी allow नहीं किया. So it's very clear that China is quite suspicious. और इसने अब international agencies में भी, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे देश हैं, ये नंबर हैं, इनको भी उन्होंने डेट ट्रैप में वो करके दे आर चाइनाज supporters, तो international agencies को भी control कर लिया. तो India wants that there should be democratization of international agencies. So at this point of time, I think that India is interested in West Asia as well, because 65% of energy supply is sourced from West Asia. तो West Asia में भी peace चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि US या ईरान का कोई झगड़ा हो. West Asia में भी problem है. अब अफगानिस्तान में तालिबान आने की वजह से भी पूरे region it is believed that there will be intensification of terrorism. Central Asian republics में भी China जिस तरह से घुस गया है, they want that India should be there. तो India सबको साथ लेके चलना चाहता है. वो India wants stability. अगर West Asia में instability होती है, conflict होता है, तो that is also not in the interest of India. अगर Central Asia में होता है या East Asia में कोई conflict होता है, तो that is also not in the interest of India. So India wants to help. लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को क्यों India help कर रहा है? India wants stability. India doesn't want any kind of conflict or any kind of disturbance in any of its neighboring countries or in the extended neighborhood areas. So India जो है वो is trying to deal with the situation, is trying to make use of the opportunities, but still it is facing serious challenges. So इसमें at this point of time, the serious challenges that India is facing, one is the environmental issue, because environment जो इतना security insecurity दिखती नहीं है, पर India की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है. जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए ने ना तो क्योटो प्रोटोकॉल माना, ना पेरिस एग्रीमेंट माना. अब इंडिया वांट्स टू चैंपियन द कॉज ऑफ डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑल दिस chaos, जितना भी अभी इम्बैलेंस नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, इसको मिटिगेट करना होगा, कार्बन इमिशन को मिटिगेट करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग अगर इस तरीके से बढ़ता गया. यू हैव सीन कि कैसे पूरे वर्ल्ड में नेचर की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड वी हैव टू डू इट कलेक्टिवली. दूसरा जो मेजर थ्रेट टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड सिक्योरिटी इज फ्रॉम टेररिज्म, global terrorism. Our Prime Minister Modi has clearly stated that there should be zero tolerance to global terrorism. हम सबको इसके खिलाफ मिलके काम करना होगा. Unfortunately, China जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को. तो जो प्रॉब्लमेटिक हमारे जो नेबरिंग एरिया में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है, so India has to deal with those challenges. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतना बड़ा यूथ है हमारे पास, इसके लिए हमको प्राउड होना चाहिए. But we find that this youth has to be resourceful, it has to be educated. 70% of the youth is in India, तो इसको हमें educate करना होगा, resourceful करना होगा, skill करना होगा. जो Prime Minister मोदी का Skill India, Make in India और Digital India, ये जो schemes हैं, that is to assimilate all this youth in these programs, so that India should be able to make local commodities, not only to fulfill the demands of Indians, but also to make it globally competitive, so that we should try to increase our trade. So export is also a serious problem for India. So all these challenges are there. So I think at this point of time, एक और problem जो basic problem है, जो international, अभी यूक्रेन में हमने देखा कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया है यूक्रेन में, अगर अभी तक चाइना के ऊपर फोकस था कि चाइना इज एक्सपेंडिंग, ट्राइंग टू इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर, अभी रशिया के ऊपर फोकस होता है. पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायलेमा ये है, अगर वर्ल्ड अटेंशन रशिया के ऊपर फिक्स हो जाती है, चाइना से हट जाती है, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस को थोड़ा धक्का लगेगा. नाउ ऑल द कंट्रीज आर सपोर्टिंग इंडिया, दे आर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज दे थिंक दैट थ्रू इंडिया दे कैन काउंटर चाइना's expansionism. But now we have to see to it that how, because China जो है अभी रशिया को सपोर्ट कर रहा है, it abstained from the UN most of the meetings, और रशिया को जो यूक्रेन है उसमें इंडिया and
China, और India ने भी didn't support the US or the West European countries on Ukraine. तो वो कहते हैं कि अगर law based, rule based order होना चाहिए तो वो हर जगह होना चाहिए. तो India is trying to act independently. तो अभी जो India की alliances हैं, India का अपने, it is not ideologically based कि वो democratic है, वो authoritarian है. It is interest based, it is issue based. अगर हमें weaponry चाहिए, रशिया से S-400 हमको लेने हैं तो हम उससे लेंगे. अगर रशिया, अमेरिका को ऑब्जेक्टिव है तो अमेरिका को अंडरस्टैंड करना होगा कि दिस इज इंडिया. इंडिया इज नॉट अ सैटेलाइट कंट्री एनी मोर. इंडिया हैज, इट इज इट्स बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग पावर पोजीशन. अब इसकी ऐसी पावर पोजीशन है कि इसको एक पेरिफेरल कंट्री की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. इंडिया कैन टेक इट्स इंडिपेंडेंट स्टैंड, बट स्टिल इट हैज टू ग्रो. इंडिया हैज टू make best use of the opportunities. India has to use its diplomatic channels to have friendly relations with most of the countries. It has to help the Southeast Asian countries and West Asian countries to maintain stability, economic stability, ताकि China जो है इनको ज़्यादा exploit ना कर पाए. तो India को भी बहुत कुछ करना है international politics. So India is emerging as a significant regional and global player. And India can make use of various opportunities, but at the same time, India is facing serious challenges. सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने एक और जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज. अभी इंटरनेशनल एजेंसीज कुछ काम नहीं कर पा रही हैं. आप देखते हैं यूक्रेन में भी अभी वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ कि यूक्रेन. अभी रशियन पॉइंट इज दैट NATO forces should roll back. I mean the situation is standstill kind of situation. Cease fire नहीं हो पा रहा है, रुक नहीं पा रही है. It is lingering. It's a kind of protracted situation. So the entire international politics appears to be in flux. Terrorism, environment, conflicts, wars, arms race, और ऐसा लगने लगा है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड इज डीग्लोबलाइजिंग इन द सेंस. हालांकि टेक्नोलॉजिकली वी विल रिमेन ग्लोबलाइज्ड, इकोनॉमिकली वी कैन नॉट डीग्लोबलाइज, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से दो कैंप उभर के आ रहे हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान on the one side, and US, West European countries, Japan, Australia, and all these countries on the other side. There's a kind of two camps are emerging, and countries like India has to tread very carefully. उनको दोनों तरफ अपना कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी पॉलिसी को चलाना है, ये सारी चीजें हैं. So I think we have progressed, but we have a long way to go, and we have to deal with all these challenges, and we have to make best use of the opportunities. और इंडिया को अभी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी का जो एजेंडा है कि या तो नई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए या फिर इनको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा. दे हैव बिकम नॉन फंक्शनल ऑलमोस्ट, एंड दे आर अनेबल टू डील विद द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द इंटरनेशनल system. So I think that this is quotidian policy कि अभी पाकिस्तान और चाइना के साथ, हालांकि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक, ये भी quotidian है. quotidian ने कहा था never march against strong enemy, कि आपको जो स्ट्रॉन्गर एनिमी है उससे लड़ाई मत करना. जैसे यूक्रेन का अगर हम एग्जांपल ले तो रशिया के साथ उसने लड़ाई की, या सद्दाम हुसैन का एग्जांपल ले, अमेरिका से उन्होंने लड़ाई की, पर इंडिया ने कभी भी चाइना के साथ ओपनली वॉरफेयर करने की कोशिश नहीं की. फाइनली डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, इट इज नो मैच टू चाइनाज डिफेंस कैपेबिलिटी, एंड वी रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट. We can deal with Pakistan but not with China. और न्यूक्लियर फैक्टर होने की वजह से you cannot have conventional wars. So India has needs to deal with the challenges, has to use its diplomatic channels, but at the same time it has to strengthen its defense capabilities to be in a better bargaining position. क्योंकि अगर आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, आपकी पावर पोजीशन अच्छी है, तभी आप इंटरनेशनल फोरम पे आप अच्छे से डिप्लोमेटिकली आप असर्ट कर सकते हैं. आप you can have your say, and you can use your power as a bargaining chip. So with this, I think I stop over here, and if there are any questions, they are most welcome. Respected ma'am, the lecture you took today, I'm so much mesmerized by your lecture that I'm thinking of taking an admission in your college as a student of political science, if there is still vacancy.
I mean, you started with this Cartesian thought with the traders, the percentage of trades trade that India had, Swami Vivekananda views, hence Morgenthau, the German jurist, nuclear disarmament, Gandhian thought, Homi Bhabha's story about that Homi Bhabha's story and this BARC, China, Russia, nuclear bomb. I mean, rocket launchers, that story, Hari Singh story, United Nations, terrorism, Aksai Chin, and that non-proliferation treaty, 1971 UK, US Pak China alliance, 1974 when India tested nuclear. IAEA, and then the sixth nuclear power, the clandestine in the clandestine form which India became. The challenges, the 90s era when we were economically, so we were starting to develop economically, and traditional knowledge, biodiversity, environmental issues, make in India, and I mean, really, I don't have words to say what else a person can say in this 1 hour. You have almost make us go around across the globe regarding this foreign policy. It was a wonderful lecture, ma'am. And now I call upon the participants to please raise your hands if you have any genuine questions regarding the session. Anyone? Participants, there are Vikas Kumar Sharma ji, please ask your questions. थैंक यू सर। मैम सादर प्रणाम। आपका व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरा भी रुचिकर विषय है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैम कि जैसे यूक्रेन के मामले में भारत का स्टैंड बहुत सटीक रहा रशिया को लेके और अमेरिका को लेके, तो क्या कभी भारत की चाइना के साथ कोई वारफेयर होती है तो आपको क्या लगता है कि रशिया का स्टैंड न्यूट्रल रहेगा या भारत के पक्ष में रहेगा? एक तो ये क्वेश्चन था मेरा। दूसरा ये था कि क्या जो रशिया ने यूक्रेन के मामले में गलती की, क्या कोई ऐसी गलती चाइना भी वियतनाम के संबंध में कर सकता है? क्योंकि रशिया को बहुत नुकसान हुआ, लगभग 4-5 महीने हो गए इस युद्ध को चलते हुए, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। तो क्या ऐसा आत्मघाती कदम उठाने की सोचेगा चाइना वियतनाम के संबंध में? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप बता दीजिए मैम प्लीज। हाँ जी, विकास जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक तो मैंने आपको ये बता दूं कि जो युद्ध है ये जैसे पहले जाना जाता था कि आप युद्ध करेंगे तो आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, तो इसके लिए किया जाता है। तो आपने जो कहा कि जो रशिया ने भारत ने जो पॉलिसी अपनाई यूक्रेन के बारे में, क्या चाइना के साथ अगर लड़ाई होती है रशिया हमारे साथ आएगा? चाइना के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी। चाइना और इंडिया, बिकॉज इसमें एक न्यूक्लियर फैक्टर का पॉइंट आता है। whenever there are nuclear countries, जो इंडिया ने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, या पाकिस्तान के खिलाफ भी हम अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन थ्रेड बिटवीन कन्वेंशनल एंड द न्यूक्लियर वॉरफेयर। जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स आप बनाते हैं तो दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं होती। अगर कन्वेंशनल वॉर होते हैं इमीडिएटली न्यूक्लियर बनने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनली वीकर कंट्री होता है वो इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की सोचेगा। तो अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें 1945 के बाद अभी तक एक भी न्यूक्लियर युद्ध नहीं हुआ है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, कोरिया हुआ, वियतनाम हुआ, काफी कुछ हुआ, बट यूएसए नेवर यूज्ड और रशिया नेवर यूज्ड न्यूक्लियर वेपन्स, रादर दे रिमेन्ड इन प्रॉक्सी वॉरफेयर। वो इनके आपस में कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर भी नहीं हुआ। रशिया और अमेरिका की बात कर लीजिए या चाइना की बात कर लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस की बात कर लीजिए, इंडिया की पाकिस्तान की बात कर लीजिए, प्रॉक्सी वॉर में हम दोनों इन्वॉल्व है या कुछ भी है। पर एक तो ये चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर की बात है, तो जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज है उनके बीच में वॉर का स्कोप नहीं होता है। और रशिया हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, इंडिया ने जब 3 लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान के साथ तो हमने रशिया को कहा कि हम आपको नहीं आने देंगे। इंडिया इंडिपेंडेंटली चीजों को हैंडल करना चाहता है। इंडिया नेवर वांट्स, क्योंकि रशिया वेरेवर रशिया गोज इट ऑक्यूपाइज द कंट्री। रशिया की जो हिस्ट्री रही है इट इज एज मच इंपीरियलिस्ट एज यूएस। जहां पे यूएसए गया उसने अगर ऑक्यूपाई किया, तो जहां पे रशिया गया उसने भी ऑक्यूपाई किया कंट्रीज को। सो इंडिया नेवर
never wanted Russian forces to come and help us. जब भी किसी ने कहा ऑफर किया 3 वॉर्स में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ थी या चाइना के साथ लड़ाई हुई, India never allowed any of the superpowers to come and dispatch their forces. Even 7th Fleet जब आया बे ऑफ बंगाल पाकिस्तान को सपोर्ट करने, वो भी हमने वापस पहुंचाया रशिया को कहलवा के. सो एक तो ये बात है कि जो वॉरफेयर है, आई एम रूलिंग आउट. जब भी कारगिल वॉर हुआ था लोगों ने कहा था वर्ल्ड वॉर होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, ये सब होगा. सो बट आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑन वॉर, द इश्यूज ऑफ वॉर एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर. इस पे मेरा रिसर्च है, इसलिए आई रूल आउट एनी काइंड ऑफ वॉर बिटवीन न्यूक्लियर कंट्रीज. तो चाइना और इंडिया के बीच में तो वॉर नहीं होगा. दूसरा जो आप कहते हैं रशिया ने जो गलती की है यूक्रेन को अटैक करके, आप इसमें दो परसेप्शंस हो सकते हैं. एक तो ये है कि रशिया इस समय उसने अगर अटैक किया यूक्रेन को, आप ये सोचिए कि यूक्रेन की रोल के बारे में भी सोचिए. अगर मैं कहती हूँ कि जो स्मॉलर कंट्री है, पूरी कंट्री को तबाह करवा लिया एक रूलर ने. अगर रशिया ने कहा कि रोल बैक नेटो फोर्सेस, अगर यूक्रेन में आ जाता है अमेरिका और न्यूक्लियर प्लांट्स हैं यूक्रेन में, और जो नेटो फोर्सेस आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो रशिया के लिए खतरा था. तो रशिया नहीं चाहता था, और रशिया काफी टाइम से कहता था यूक्रेन को कि आप इसको नेटो को रोल बैक कीजिए, नेटो फोर्सेस को मत आने दीजिए. और दूसरी बात यह कि जो यूक्रेन ने सोचा, क्या सोच के लड़ाई कर ली रशिया के साथ कि सारा यूरोप मेरे साथ आएगा, यूएसए मेरे साथ आएगा, नेटो फोर्सेस मेरे साथ आएंगे. तो कोई आया क्या उनके साथ? पूरा कंट्री तबाह हो गया. मेरे ख्याल नेशनल सर्वाइवल इज अ वेरी वेरी टॉप प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री. अपने देश को तबाह करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है. आपने अपने देश को, हम चाइना को अगर चाहते कभी सोचते कि हम सबक सिखा दें, पाकिस्तान को सबक सिखाते, और हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहा है इंडिया का कारगिल के टाइम में कि क्यों नहीं इंडिया, ये न्यूक्लियर वेपन्स क्या चूड़ियां पहनने के लिए हैं, ये क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हमारी इतनी बड़ी हमारी कन्वेंशनल फोर्स है, हमारे ये है, हम क्यों नो फोर्स यूज करके बैठे हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करके बैठे हैं, मिनिमम डेटरेंस कैपेबिलिटी की पॉलिसी लगा के बैठे हैं, हम क्यों ये करके बैठे हैं. द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट. योर top priority is your territory, your people, your sovereignty. आपने सब कुछ तबाह करवा लिया है, सारे लोगों को बेघर बार करवा लिया है. क्या आपने हासिल किया है इस वॉर से? वॉर इज अ पॉलिटिकल वॉर, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है. अब लोग कह रहे हैं कि वो तो एक्टर था. अरे रेगन भी हॉलीवुड एक्टर था, पर उसकी स्ट्रैटेजी देखिए, उसकी पॉलिसी देखिए, पूरा व्हाइट हाउस की डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज देखिए, पूरे रशिया की उसने जो ये कोल्ड वॉर से रशिया ने कोल्ड वॉर से विड्रॉ किया है, पॉलिसी रेगन से ही शुरू हुई थी. तो एक्टर होना काफी, मतलब ये नहीं कहना कि ये हाँ एक्टर है फलाना है. द थिंग इज हाउ योर डिसीजन मेकर. सिर्फ एक डिसीजन मेकर नहीं होता है, सिर्फ लीडर डिसीजन मेकर नहीं होता है. ही हैज टीम्स, ही हैज वाइज टीम्स टू डिसाइड कि व्हाट एक्शन अ कंट्री शुड टेक. तो उनका डिसीजन मेकिंग कैसा रहा? अगर रशिया कह रहा था तो उनको भी डिप्लोमेटिक चैनल्स, और अभी भी क्या सोच रहे हैं. सो मेरे को लगता है कि आप कह रहे हैं कि रशिया स्टिल विल सस्टेन, इट्स अ बिग कंट्री. रशिया को नुकसान हुआ है, पर आपको यूक्रेन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है. और अब अभी आप ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर रहे हैं, उनके घर बनाएंगे, उनके हॉस्पिटल बनाएंगे. अरे कंट्री तो बर्बाद हो गया. आप देखिए रशिया, अगर आप जो इसकी बात करते हैं इसकी, it's getting out of my mind. चलो anyway, अफगानिस्तान. नो. अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो आप लड़ाई करना चाहते हैं या जो लड़ाइयाँ करते हैं, या छोटे देश जो है, या हाँ, जो ईरान और इराक की जो लड़ाई हुई थी, इराक वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द गल्फ. इतने सारे इंडियंस जाते थे इराक में 80s में, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, और इतने हाईली पेड होते थे. ईरान और इराक की जब लड़ाई शुरू हुई तो इराक कहाँ पहुंच गया? लड़ाई से कभी किसी को हासिल नहीं होता. ए विक्टोरियस कंट्री इज एज मच अ लूजर एज अ डिफीटेड कंट्री. तो जो लड़ाई है, जो आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं, वो किस लिए हो रही हैं? ये जो इसमें रशिया को पता था कोविड के टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई हैं और ये सब हो गई हैं, यूक्रेन ने भी नहीं समझा इस बात को, और रशिया ने भी नहीं समझा. और अभी क्या होगा, कैसे होगा? द एंटायर वर्ल्ड अपीयर्स टू बी बाइपोलराइज्ड. पूरा जो विश्व है वो दो भागों में. और आप कह रहे हैं कि वियतनाम के ऊपर चाइना अटैक करेगा, नहीं करेगा. वियतनाम के ऊपर चाइना सुनजो पॉलिसी को लेके चलता है, विन वॉर विदाउट फाइटिंग वॉर.
उसने ओशंस को हथियाना है और अपने साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव लगा के पूरे पैसिफिक ओशन को, इंडियन ओशन को, गल्फ को, इसको क्योंकि वो सारे ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहता है। और जब आर्थिक रूप से पूरा वो सक्षम हो जाएगा, पूरी इतनी ज्यादा पावर उसने बढ़ा ली है, तो उससे हथियार बनाएगा। हथियार बनाने से फिर उसके बाद वो ग्लोबल पावर वो लड़ाई करके अपने आप को लूजर नहीं बनाना चाहता, बिकॉज यू लूज एवरीथिंग इन अ वॉर। आज जो लड़ाई है उसमें आजकल की जो लड़ाइयां हैं वो आप देखते हैं किसी कोई देश को जीत नहीं पाता है। दे हैव टू गो फॉर सीज फायर। the development of nuclear weapons has given rise to a limited war. पहले होता था कि इसको जीत लिया, उसको जीत लिया। आजकल आप लड़ाई से किसी देश, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, कितनी लड़ाइयां होने के बाद भी कश्मीर इशू डिस्प्यूटेड है। अरब इजराइल की इतनी ज्यादा लड़ाइयां होने के बाद भी पैलेस्टीन का इशू डिस्प्यूटेड है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, लड़ाइयां होने के बाद उसको सीज फायर होता है, टर्मिनेट किया जाता है। इसको बोलते हैं एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड वॉर। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया 38 पैरेलल लगा दिया गया ना, तो वो जनरल मैकार्थर को भी सैक कर दिया प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने। तो आप देखते हैं कि जो लड़ाइयां हैं आजकल के लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड लड़ाइयां हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, आप सब कुछ खो सकते, कुछ पाएंगे नहीं इस लड़ाई में। So wars have lost their political relevance. So any wise country with rationality will resort to. I think that was a wonderful answer, ma'am. Sanjay ji, you are also raising your hands. Please come up with a good question. Sanjay ji. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. नमस्कार मैम। मैम मैं आपके जो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कौटिल्य का आपने स्टेटमेंट दिया, नेवर मार्च अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एनिमी। तो इंडिया ने यूक्रेन के मामले में ऐसा ही किया, हालांकि रशिया जो है हमारा नेचुरल फ्रेंड है, हम वैसे भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो बात होती है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी, दूसरी तरफ भारत उधर भी कंसर्न है। तो इंटरनेशनल एजेंसी का डेमोक्रेटाइजेशन किस लेवल पर, किस बात पर वो चाहते हैं? जबकि अगर डेमोक्रेटाइजेशन की बात करें तो यूक्रेन और रशिया के मामले में सीज फायर अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। मैं इंडिया के पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं आंसर करूं? जी मैम। नहीं, जब हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं कि जो अभी पहले यूएस और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट करते थे, अब आज चाइना डोमिनेट कर रहा है थ्रू मेंबरशिप। तो हमें जो इंटरनेशनल एजेंसीज के जो जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे देश लाने होंगे दोज हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज है, जो डोमिनेटिंग कंट्रीज है, जो चाहे जब यूएनओ को यूज करेंगे, जब चाहे यूएनओ को यूज नहीं करेंगे, या तो रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज करेंगे या अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो रैशनल होनी चाहिए। और रैशनल कब होगी? जब ऐसे कंट्रीज जैसे इंडिया है, जापान है और ब्राजील है, दूसरे कंट्रीज हैं, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन मेकर होंगे और वो भी जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो छोटी कंट्रीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी डिसीजन मेकर्स होंगे। तब डेमोक्रेटाइजेशन होगा, मीन पार्टिसिपेशन, सबकी भागीदारी, डेमोक्रेटाइजेशन इस सेंस में। तो वो इंटरनेशनल जो क्राइसिस होंगे उनको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी को आज तक क्यों नहीं यूज करवाया जा रहा है? क्यों नहीं कर पाए हैं हम यूज? यूक्रेन के मामले में भी क्यों नहीं यूज कर पाए हैं? क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज आर बिकम डिफंक्ट, फॉल्टी हो गई हैं। या तो चाइना रोक लगा देगा या यूएसए रोक लगा देगा, पहले रशिया रोक लगा देता था। तो आपको कुछ ऐसे मेंबर्स लाने होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में जो कि और इसकी फंक्शनिंग को भी चेंज करना होगा, वीटो को भी हटाना होगा कि एक बंदे ने करा तो वो आप काम ही नहीं कर सकते। सो दिस वे वी हैव टू चेंज द नेचर, वी हैव टू रीस्ट्रक्चर दिस एजेंसीज। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन, ओनली मेजर पावर्स, द हेगेमोनिक पावर्स, द पावरफुल कंट्रीज, सिर्फ वही नहीं हो डिसीजन मेकर्स, वो भी कंट्रीज, छोटे कंट्रीज जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट सभी, जैसे इंडिया विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। आपने देखा कोविड में इंडिया वाज द ओनली कंट्री व्हिच वाज सप्लाइंग मेडिसिन्स एंड अदर स्टफ टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने फिर से सार्क को भी जागृत करने की कोशिश की, नैम को भी जागृत करने की कोशिश की अपनी कंट्रीज में। हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स नेबरिंग कंट्रीज में भी हेल्प करने की कोशिश की, उनसे पूछा कोई भी हेल्प चाहिए। So this way, you know, we are representing the interest of the smaller countries. तो ऐसे countries को international agencies को restructure करना होगा ताकि जो decision making है वो rational हो पाए और international जो conflicts हैं उनको रोका जा सके।
इस सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन। Thank you for the answer, ma'am. Anil ji, you are also having a question. Anil ji. जी सर, नमस्ते मैम, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। मैम अनिल जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। मैम जैसे कि चाइना ने ओबोट प्रोजेक्ट शुरू किया, सीपैक गलियारा पल्स मोतियों की माला के माध्यम से विभिन्न देशों में उसने कनेक्टिविटी को डेवलप किया। उसके बाद में वहां पे उन देशों में हमें अस्थिरता देखने को मिली, जैसे अफगानिस्तान में देखने को मिली, श्रीलंका में देखने को मिली, अन्य देशों में भी जैसे पाकिस्तान में भी अस्थिरता का माहौल है। तो क्या चीन केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हितों से ही संचालित हो रहा है या आगे इन देशों में इनके राजनीतिक मुद्दों पर इंटरफेयर करेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो कहा, जो चाइना का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये था, मैंने आपको बताया कि रोड्स के जरिए ऑक्यूपाई करना, तो उसका अपना राष्ट्र हित ही है। जो आप देखते हैं अपना शी जिनपिंग हमेशा के लिए ही मैं रूलर रहूंगा पाकिस्तान का, और इसने जो रोड इनिशिएटिव भी बनाया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, लोगों को एल्योर किया इन कंट्रीज को कि बड़ी प्रोग्रेस होगा, पर इन रोड्स को बनाने के जरिए इन कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। अब जब डेट ट्रैप हो गया, उनको लोन दे दिए इतने सारे, और फिर उसके बाद लोन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके एरियाज ले लिए हैं। तो ये जो उसने मोतियों की माला बनाई है, जो एनसर्कल, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एनसर्कल करना और इंडियन ओशन में अपने पैठ बनाना, ताकि ये जो सारा यहाँ पे मिलिटराइज करके पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सके। तो चाइना का, जैसे मैंने बताया कि उसका ऑब्जेक्टिव ही है अपने सारे ट्रेडिंग रूट्स जो हैं, जहां से वो व्यापार करता है, सारे के सारे पानियों को, समुद्रों को पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, और इन देशों में अपने अगर बेसिस बना देगा तो समुद्रों में वो अपना आधिपत्य कर पाएगा। तो इसका सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है, और इसकी वजह से सभी देशों की हालत खराब हो रही है। मैंने बोला आपको, आधा तो अफ्रीका ही कॉलोनाइज हो चुका है। अभी आप श्रीलंका में देख रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है। अभी आप और अफगानिस्तान में तो खैर यूएसए का ज्यादा वो था, that was a different matter, but हम देखते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और अभी चाइना का बेसिक ऑब्जेक्टिव है यूरेशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जरिए यूरोप तक पहुंचना। एक बार एशिया को कंट्रोल कर लेगा, यूरोप को कंट्रोल कर लेगा, दैट्स एंड ऑफ इट। उसके बाद तो फिर बियॉन्ड अटलांटिक और पैसिफिक वो पूरा, क्योंकि सारी इकोनॉमी तो यहीं पर है। तो इसलिए हम देखते हैं कि चाइना का जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत बड़ा है, और ये जो स्ट्रेटजी उसने अपनाई, ये लगती है लड़ाई की स्ट्रेटजी नहीं है, पर ये पूरे विश्व के ये जो देश है, अफ्रीकन कंट्रीज, जो वहाँ विकास के नाम पर जो उसने वहां पर किया, ये सारे कंट्रीज बहुत ही खराब सिचुएशन में हैं, और अब इतना ज्यादा डेट है तो वो उसके वैसे पीछे ठल्लुगु हो गए हैं। जो वो कहेगा चाइना वही करेगा। आपने देखा कि ऐसे कोविड में हमें WHO ने इन्फॉर्म भी नहीं किया इन टाइम, बिकॉज चाइना डिड नॉट लेट देम इन्फॉर्म इन टाइम। UNO में भी को नहीं ले जाया गया। तो जैसा ये कंट्रीज को कहेंगे वैसा ये कंट्रीज करेंगे, क्योंकि सबके सब लोन के अंदर है चाइना के। तो पॉलिटिक्स भी कंट्रोल हो गई, इकोनॉमिक, एक बार उन्होंने लैंड कंट्रोल कर लिया, उनकी इकोनॉमी कंट्रोल हो गई, उसके बाद पॉलिटिक्स तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। That is very true, ma'am. In fact, हाँ जी संजय जी, बोलिए आप पहले बताइए। इसका मतलब मैम, जैसे पुराने टाइम में इंग्लैंड का समुद्र पर कब्जा था, तो वो सारे वर्ल्ड को ही अपने प्रभाव में ले पाया, तो उसी की तरह इनिशिएटिव ले रहा है चाइना भी। हाँ जी, तो ये इसको थ्यूसिडाइड्स ट्रैप बोलते हैं। An alternate power is emerging to replace the global hegemon. कि पूरे yes, I was also contributing in that what you said, ma'am. In fact, if I am not wrong, what I heard that China is promoting all the countries to do the trade in Chinese currency and not in dollars, because they want the dollar to go down and their currency to go up, if I am not wrong. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अपना चला रहे हैं, अपना ही वो ICT टूल, उन्होंने अपना ही 5G, अपना ही करेंसी,
तो gradually by 2049 they want to replace, or and American power is also declining. COVID से कहते हैं COVID was a tool, ये एक conspiracy थी पूरे US और यूरोपियन कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब करने के लिए उनकी। आप देखिए कितनी हालत खराब हो गई है, दे आर कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। डॉलर आज कहाँ पहुंच गया है, 80 रुपए का हो गया है जस्ट इन 1 month, 75 to it has jumped to 80 rupees. I mean this is very true कि जो चाइना है वो इकोनॉमी पे भी, पूरे वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी का भी वो करना चाहता है, और पॉलिटिक्स, those who control the economic power. So China is an imperialist, of course, is trying to hegemonize the whole world. Yes, thank you, ma'am. And Dr. Aarti Rathi, you are also having a question, ma'am. Please. गुड आफ्टरनून मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और नेबर्स कंट्रीज के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ आपके इससे। सबसे बड़ा तो ये जो इशू था कि चाइना और पाकिस्तान से वॉर हो सकता है, वो आपने क्लियर कर दिया कि वॉर तो कभी नहीं होगा, डायरेक्ट वॉर कभी नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है मैडम। ये जो नुपुर शर्मा वाला जो इंसिडेंट है, मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि ये जो अरब कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज ने इस पर जो ऑब्जेक्शन लिया है, जो अपना स्टैंड लिया है, क्या इंडिया की इन कंट्रीज के साथ फॉरेन रिलेशंस पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या ये एक माइनर सा इंसिडेंट है जिसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा फ्यूचर में? देखिए ये जो सोशल मीडिया और दूसरी चीजें होती हैं, कंट्रीज जो नेशनल गवर्नमेंट्स होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल है, इंडिया का जो हुआ है, नुपुर शर्मा का जो हुआ है, इंडिया इज गाइडेड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ भी होता है, but at the same time these countries leaders are rational enough to continue their diplomatic and economic relations. तो इंडिया की एनर्जी 65% वहां से आती है, तो इंडिया जो है डिप्लोमेटिक, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, एंड it's I think that it won't implicate the political, जो हमारा political level पे या economic level के जो relations है, it's a very emotional and very sensitive issue, and I don't think that economic and political relations should get affected. It should be handled with care, this kind of issue, and people should understand what's happening. बट जो सोशल मीडिया है उसके जरिए उनको क्या पता चलता है और इस कंट्री में क्या हो रहा है, इसके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट ईच कंट्री इज गाइडेड, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय नॉट व्हाट पीपल से, बट ऑफ कोर्स पब्लिक कंसेंसस तो चाहिए, पर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप इकोनॉमिक रिलेशंस खराब कर लो या अपने पॉलिटिकल रिलेशंस, अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या है, how to protect the economic interest, how to protect the political interest, that is the relations उस sense में हमारे continue रहनी चाहिए। Any other participants? Any other participant? So I think there are no more questions. That means we all are mentally satisfied with the wonderful presentation and the answers given by respected resource person, ma'am. So in this regard, I would like to request the chosen participant for the day to come forward for the formal vote of thanks. Please give a huge applaud in the chat box, and that is my personal opinion. You give your own, and please come forward for the vote of thanks. It was really a wonderful lecture. Yes. Please. Yes, sir. Yes. सबसे पहले तो मैम आपको सादर प्रणाम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आपने अपने व्याख्यान की शुरुआत भारत की विदेश नीति के संबंध में की, और आपने कहा कि भारत की विदेश नीति में प्रारंभ से लेकर आज तक बहुत से परिवर्तन हुए हैं। आपने ये बताया कि कोई भी देश की विदेश नीति कभी भी शून्य में नहीं रह सकती। आपने बताया कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल अलग है, ये न तो रशिया के फ्रेम में है, ना अमेरिकी विदेश नीति के फ्रेम में है। आपने भारत की विदेश नीति के दार्शनिक पक्षों के संबंध में विस्तार से बात की। आपने बताया कि भारत की विदेश नीति पर प्राचीन भारतीय चिंतन, इनकी यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के जो ऐतिहासिक अनुभव, उनका प्रभाव पड़ा है। आपने बताया कि भारत की विदेश नीति पर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और उसके मंडल सिद्धांतों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आपने भारत की विदेश नीति के संबंध में बताया कि भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया,
भारत ने उल्टे जो आक्रांता भारत में आए उनकी संस्कृति को अपने यहाँ आत्मसात किया और इन्हीं का सांगोपांग एक दृश्य भारतीय विदेश नीति में हमको दिखाई देता है। आपने बताया कि वैश्वीकरण के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार किस प्रकार रहे और भारत की विदेश नीति पर ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं। आपने मॉर्गेंथो की पुस्तक द पॉलिटिक्स अमंग नेशन के बारे में बात की और आपने कहा कि राज्यों की राजनीति शक्ति पर आधारित है। आपने मैकियावली को यहाँ कोट करते हुए मैकियावली के दर्शन को बताया और आपने गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति है, गांधी जी की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, उसके संबंध में बात की। आपने भारत के दो वैज्ञानिकों डॉक्टर होमी जागिर भाभा और विक्रम साराभाई के बारे में बात कही। आपने बताया कि डॉक्टर होमी जागिर भाभा भारत को आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन प्रारंभिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम आणविक शस्त्रों के प्रयोग को स्वीकार करें, इसलिए पंडित नेहरू ने इसको खारिज कर दिया था। बाद में फिर इन सब बातों को हमने स्वीकार किया, जबकि साराभाई ने ये बताया था कि ये इनका उपयोग हम बिजली और बीमारी दूसरे इक्विपमेंट्स में कर सकेंगे। आपने 1960 के दौर का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता जिसमें आपने एक गाड़ी जो बैलगाड़ी थी उसके ऊपर सैटेलाइट प्रशिक्षण यंत्र को लेके आए, उसके संबंध में उदाहरण देके बताया। आपने विक्रम साराभाई को भारत की रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली का पिता बताया। आपने कश्मीर के संबंध में बात की, जो कश्मीर बहुत विवादित इशू रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। आपने बताया कि आजादी के समय कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहाँ उस विभाजन के समय ये कहा गया था कि कोई भी राज्य भारत या पाकिस्तान में से किसी भी में शामिल हो सकता है, कोई भी रियासत या स्वतंत्र रह सकती है। इसी के तहत जो मुस्लिम बहुल जो कश्मीर था, जहाँ के राजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने अलग रहना स्वीकार किया। लेकिन बाद में जब मुजाहिदीन का आक्रमण हुआ तो फिर उन्होंने भारत में मिलना स्वीकार किया। आपने इसके दौरान ये भी बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव के आधार पर पंडित नेहरू जो ये द्विपक्षीय मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद का, उसको यूएनओ में लेके गए और यूएनओ के इस द्विपक्षीय मुद्दे को अमेरिका और दूसरे देशों ने हल नहीं होने दिया। उनको ये डर था कि यदि कश्मीर भारत को दे दिया गया तो गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष रूप से भारत का नियंत्रण हो जाएगा। आपने आतंकवाद के संबंध में बात की जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। आपने कहा कि कमजोर राष्ट्र ही आतंकवाद को अपनाते हैं। आपने पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में बात की। आपने भारत चीन संबंधों के तहत बताते हुए बताया कि प्रारंभ में चीन को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने बहुत सपोर्ट किया और भारत ने अति विश्वास जताया चीन पर और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे और पंचशील के समझौते के आधार पर भारत चलता रहा, लेकिन चीन इस नीति पर कतई नहीं चला और चीन ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। आपने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में बात की और ये भेदभावपूर्ण होने के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसमें भारत की भूमिका के संबंध में विस्तार से बात की। आपने बताया कि जब से भारत ने प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण किया तब से किसी भी अन्य देश, पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई अन्य देश ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। आपने सार्क के संबंध में बहुत विस्तार से बात की, दक्षिण एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आपने बताया कि ये दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है। और भारत की ये नीति है कि किसी अन्य महाशक्ति को इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पैर पसारने से रोका जाए और भारत आगे बढ़कर इन राष्ट्रों को, इन छोटे राष्ट्रों को सपोर्ट भी करता रहता है, इनको आर्थिक मदद भी करता रहता है, जैसे अभी श्रीलंका के संबंध में। आपने बताया कि 1991 के दौर में भारत की विदेश नीति का प्रथम पड़ाव माना जा सकता है, क्योंकि उस समय वैश्वीकरण की नीति को भारत में अपनाया गया और उसके प्रभाव के संबंध में बात की। आपने जो दक्षिण पूर्वी देश हैं जिनके संबंध में लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की। आपने 1991 के बाद चीन के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों की बात की। आपने वेस्ट एंड ईस्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस के संबंध में बात की। आपने बताया कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिमी देश भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्वी देश भी भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि चीन साउथ चाइना सी के संबंध में छोटे छोटे आइलैंड्स पर अपना आधिपत्य जमा रहा है
और इसके संबंध में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब भारत की तरफ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत ही चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को रोक सकता है, और भारत को भी इन देशों के साथ हाथ मिलाने से एक फायदा ही है कि वो चीन जैसी बढ़ती महाशक्ति के ऊपर आवश्यक नियंत्रण लगा सके। आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर चीन धीरे धीरे नियंत्रण करने लगा है। आपने बताया कि भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों द्वारा क्रिएट की गई समस्याओं से ग्रसित है। आतंकवाद के संबंध में चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है। मैम, आपने यूक्रेन के संबंध में बात की, आपने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लोकतांत्रिकरण की बात की, जिसमें विशेषकर यूएनओ के संबंध में आपने कौटिल्य को कई बार कोट करते हुए कहा कि कौटिल्य ने कहा कि कभी भी मजबूत पड़ोसी देश के साथ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करना चाहिए। आपने बहुत डिटेल से बताया मैम, मैंने भी बहुत 4-5 पेज में ये उतार रखा है पूरा, लेकिन मैं आपको हृदय की गहनतम तल से आपकी एक एक लाइन मैंने उतारी है मैम, लेकिन मैं ज्यादा क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, और आज तो मयंक सर ने मेरे को बहुत समय दे दिया, वरना तो ये टॉक देते कब के। आपको बहुत हृदय के गहनतम तल से आपको आभारी हूँ, आपने ऐसा व्याख्यान दिया, क्योंकि ये बहुत इमर्जिंग इश्यूज हैं। और मैं संपूर्ण एचआरडीसी टीम को भी बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने मुझे दूसरी बार वोट ऑफ थैंक्स का मौका दिया, जिसमें संजुला थानवी मैम, डॉक्टर मयंक वर्णवाल सर, अंजू गहलोत मैम, आरती मैम, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा। साथ ही मेरे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने धैर्यपूर्वक सभी व्याख्यानों को सुन रहे हैं, वो बहुत अनुशासित और बहुत ही शांतिपूर्वक, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आपको मैम एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Thank you very much, and I really thank you, Dr. for giving me this opportunity to interact with students. Thank you very much. All the members. Thank you. The pleasure was all ours, and we will again in future keep requesting you for your blessings. Sure. Thank you so much. All right. Okay. Thank you, ma'am. You can log off, ma'am. Thank you so much for being with us. The participants, I believe it was a very much needed session that we had in the second session today. इस बारे में अभी तक किसी भी रिसोर्स पर्सन के द्वारा बात नहीं की गई थी, तो I also enjoyed this session very much, and that was the reason I really jotted down the points what ma'am was speaking. So that is all for today's second session, and in the third and fourth session we'll meet again. So 1.25 p.m. all of us have to meet again, and for the fourth session आप सभी को बताया जा चुका है कि हमारे एक साउथ इंडिया से रिसोर्स पर्सन है, तो कृपया धैर्य पूर्वक उनका लेक्चर सुन लीजिएगा और हमारे साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें सभी का ख्याल रखना है। तो वो सबका साथ सबका विकास तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमें सभी का ख्याल रखना है, नहीं तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। So that is all, friends. Keep smiling like this always, and we meet again at 1.25 p.m. I hope all of you will again enjoy the coming sessions. आज तो presentation भी है, सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। पहले 12 पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप ए के 5 से 6 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसा कि बताया जा चुका है। 5वें मिनट पे आपको केवल एक हिंट कर दिया जाएगा, लास्ट 1 मिनट। तो कृपया करके आप कोशिश कीजिए चौथे से 5वें मिनट में अपना जो प्रेजेंटेशन है आप खुद ही कंक्लूड करते हैं, जिससे कि आपके साथी को हम वो हैंड ओवर कर सके। और इवेल्युएटर उसमें हम जुड़े रहेंगे, जीडी हम कर चुके हैं, उस तरीके से वही फॉर्मेट अपनाया जाएगा और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू विल परफॉर्म, गिव योर 100% एंड देन लीव द रेस्ट ऑन गॉड। तो चलिए मिलते हैं लंच करके। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन।